Hello everyone. Today our topic for discussion is dual government of Bengal. So आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के बारे में. ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंस क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को बंगाल में, एंड वी आल्सो डिस्कस इट्स डेमेरिट्स एज वेल. हम इसके डेमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना. So my dear students, as we know that British got Diwani writers. British got Diwani writers means right to collection of revenue of Bengal, Bihar and Odisha after Battle of Buxar. After Battle of Buxar. So for the dual government of Bengal is concerned, this system, dual system or dual government in Bengal, it was introduced by Robert Clive. किसने इंट्रोड्यूस किया है इसको? रॉबर्ट क्लाइव ने. रॉबर्ट क्लाइव कौन था? दिस पर्सन was responsible behind the foundation of British rule in India. This Robert Clive, he came India. He was first governor of Bengal. कब बना पहले गवर्नर ऑफ बंगाल? In 1757 to 1760 में. उसके बाद अगेन सेकंड टेन्योर कब मिला इसको? 1765 टू 1767. गवर्नर ऑफ बंगाल, याद रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव. इसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. किसको? ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल. ठीक है ना. वी सी दैट अगेन ही बिकेम, कब बना दूसरी बार गवर्नर ऑफ बंगाल? 1765 टू 1767. ठीक है ना. इस टाइम क्या था ये? गवर्नर ऑफ बंगाल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल स्टेट्स. Now dual government means क्या है? The system of administration. Dual government का meaning, अगर हम dual government की बात करेंगे, the meaning of dual government simply means the system of administration. The system of administration having rule of Nawab and company. Having rule of Nawab and company is known as dual government. Dual government means the rule of two. Rule of two means company and Nawab. Rule of two. Dual government, rule of two. किसने स्टार्ट किया इसको ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव ने. कब? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1765 में. हम देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया. कहां पे? बंगाल में. सो एज वी नो दैट the system of administration having rule of Nawab as and company so came to be known as dual system. इसको dual system कहते हैं. ठीक है ना. So we can say that this simply means that actually we see that the result of the company's refusal to take direct administrative responsibility was simply this was result. कैसे इसका रिजल्ट क्या था? असल में ये बात थी. This was result of company's refusal to take direct responsibility of administration in Bengal. ठीक है ना. We see that Robert Clive wanted that, वो चाहते थे कि that all the powers should pass into the hands of company and to leave nothing for Nawab except name and shadow of authority. क्या चाहते थे? Name and shadow of authority. Now we see that जो ये सिस्टम था, एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव क्या चाहता था? We see after battle of Buxar, Robert Clive wanted that all the powers, जो भी powers है, it should all the powers should
pass, all the power should pass into the hands of company, into the hands of all the powers should pass into the hands of company, and to leave nothing for Nawab, and to leave nothing for नवाब. नवाब के पास कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट क्या है अब नेम एंड शेडो. याद रखना नेम एंड शेडो. किसने बताया? रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर सेज दैट ऑल द पावर्स, जो भी पावर्स है, इट शुड पास इन द हैंड्स ऑफ कंपनी and to leave nothing for Nawab except name and shadow of authority. ठीक है ना. According to this system, the company exercises, इस सिस्टम के अंडर हम देखें, कंपनी exercises दीवानी. उनको क्या मिला? दीवानी. राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ड्यूअल सिस्टम का मैन क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टम क्या असल में? ये अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कंपनी, याद रखना ये बात, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम company got, according to terms of dual government, dual system, according to this system, company exercises diwani. Company exercised the दीवानी. कंपनी को क्या मिला? दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड निजामत. और क्या मिला? निजामत. ठीक है ना. निजामत. पुलिस एंड जुडिशियल. निजामत मीन्स पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस. Police and judicial functioners under according to this system. कौन सा सिस्टम? ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल. कंपनी एक्सरसाइज्ड, कंपनी गॉट दीवानी राइट्स. उनको मिला दीवानी, राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के राइट्स मिले. कहां के? बंगाल में. ठीक है ना. बिहार एंड उड़ीसा. बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है ना. अगर हम करेंगे पहले बात बंगाल की, बंगाल में उनको क्या मिला? रेवेन्यू राइट्स, राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड आल्सो निजामत, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज. ठीक है ना. थ्रू देयर एजेंट्स. निजामत थ्रू देयर एजेंट्स. वो एजेंट्स क्या थे? इंडियन एजेंट्स. ठीक है ना. इंडियन एजेंट्स. बट एक्चुअल पावर जो थे किनके हैंड्स में थे? इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. बट द एक्चुअल पावर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. सो देयर वाज रूल ऑफ टू. कंपनी का भी रूल था, नवाब का भी रूल. बट नवाब रूल सिंपली मीन्स जस्ट शेडो एंड नेम. और कुछ भी नहीं था नवाब के पास, सिर्फ नाम और शेडो ऑफ अथॉरिटी. ठीक है ना. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नवाब की थी, उसी नवाब वाज अ पुपेट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. वो कंपनी के हाथों में कठपुतली था. कौन? नवाब. उसके पास कुछ भी नहीं था. ठीक है ना. जस्ट ए नेम. ब्रिटिशर्स को पता था दैट दे कैन नॉट टेक द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल. सो उन्होंने ड्यूअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने. ठीक है ना. क्लियर. सो नवाब का रूल भी था, बट पीपल को लगा नवाब अभी भी रूल कर रहा है, इंडियन ही है रूलर हमारा नवाब. ठीक है ना. उनको बट उसके पास अथॉरिटी कुछ भी नहीं थी. ऑल जो भी अथॉरिटी थी वो एक्सरसाइज कौन कर रहे थे? कंपनी. कौन कर रही थी? कंपनी. ठीक है ना. रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही थी एंड निजामत, जुडिशियल एज वेल एज पुलिस फंक्शंस भी. बट जो नवाब की मेन ड्यूटी थी अंडर दिस सिस्टम, वी सी दैट अंडर दिस सिस्टम नवाब वाज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर. अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंडर ड्यूअल गवर्नमेंट. अंडर दिस सिस्टम
dual government. Under this system, the Nawab's responsibility. Nawab was responsible for what? Nawab was responsible. Nawab was responsible for maintaining peace and order. Peace and order. ड्यूटी क्या थी? बस मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. उसके पास सिर्फ ड्यूटी ये थी कि आपको मेंटेन करना है, पीस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है. कहां पे? बंगाल में. ठीक है ना. और एंड ही वाज आल्सो, वो क्या था? ही वाज डिपेंडेंट. वो किन पे डिपेंड था? बोथ फंड्स एंड फोर्सेस ऑन कंपनी. ही वाज डिपेंडेंट. ही वाज डिपेंडेंट बोथ फंड्स एंड फोर्सेस. फंड्स एंड फोर्सेस डिपेंड था किन पे? On company. Why? Because we see that revenue जो भी था, revenue आर्मी कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश. ठीक है ना. रूल ऑफ नवाब भी चल रहा था, बट उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाम का नवाब था. नाम का नवाब, काम का नहीं. ठीक है ना. So we see that this Nawab's main responsibility was maintaining peace and order, and he was dependent both funds and forces कंपनी पे था. ठीक है ना. बिकॉज बोथ आर्मी एज वेल एज रेवेन्यू किसके अंडर था? कंपनी. बोथ वी कैन से दैट कंपनी कंट्रोलर. कंपनी कंट्रोल क्या कर रही थी? बोथ आर्मी एंड रेवेन्यूज. जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो किसके अंडर था? कंपनी के. ठीक है ना. सो उसके बाद क्या हुआ? वी सी दैट जब ये रूल चला, वी सी देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमेरिट्स, मनी डिमेरिट्स इस रूल ड्यूअल गवर्नमेंट के थे. ठीक है ना. सो वी सी दैट क्लाइव अपॉइंटेड टू, उसने 2 ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, नायब डिप्टी ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, दीवान को नायब दीवान को अपॉइंट किया ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी किस किस को? शिताब राय. याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. शिताब राय of Bihar, Shitab Rai of Bihar, and Muhammad Riza Khan of Bengal. Muhammad Riza Khan of Bengal. ऑफिशियल्स किसने अपॉइंट किए? क्लाइव ने. फॉर व्हाट? इनकी ड्यूटी थी. ठीक है ना. They appointed, Clive appointed these 2 officials, diwanas or naibs, deputies on behalf of the company. ठीक है ना. इनको अपॉइंट किया गया. क्लियर. सो वी कैन से दैट जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था बंगाल में, वी सी दैट देयर वाज लॉट ऑफ मनी. जो इसके वी सी दैट कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे. ठीक है ना. बहुत से ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे. वी सी दैट दिस सिस्टम, अगर इसकी कॉन्सिक्वेंस डिमेरिट्स की बात करेंगे ना, वी सी दैट दिस सिस्टम कॉन्सिक्वेंस और डिमेरिट्स की बात करेंगे. डिमेरिट्स पहला डिमेरिट क्या था इस सिस्टम का? वी सी दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रोक डाउन. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो क्या हुई? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रोक डाउन. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रोक डाउन. फर्स्ट demerit. एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो डिटोरेटेड. लॉ एंड ऑर्डर भी डिटोरेट हो गया. लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो डिटोरेटेड. थर्ड वन, वी सी दैट थर्ड क्या था? इंडियन मर्चेंट्स रिड्यूस्ड टू बेगरी. इंडियन मर्चेंट्स, जो इंडियन मर्चेंट्स थे, रिड्यूस्ड टू बेगरी. उनकी हालत, देयर कंडीशंस गोज फ्रॉम बैड टू वर्स. बैड टू सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनिट खत्म हो गई है इंडिया में. सिल्क एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल में. किससे? ड्यूअल सिस्टम. ठीक है ना. बंगाल में सिल्क एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनिट खत्म. एंड ठीक है ना, सिल्क एंड टेक्सटाइल एंड पीजेंट्स रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी. पीजेंट्स क्या हुआ? पीजेंट्स
reduce to poverty, याद रखना. Why? Because high excessive demands of land revenue. Because of high excessive, याद रखना, high excessive land revenue demands was responsible for what? For poverty, famines in India, for poverty and famines in scarcity of food. There was not availability of food in the market. Market में available of food items available ही नहीं थे ना. Why? Because British, they started commercialization of agriculture in India. They started commercialization of agriculture in, and then also we see the condition, the peasant जो थे ना, peasant reduced to poverty because of high excessive land revenue rates. And we see that neither Nawab care for the welfare of the people. Neither Nawab nor administrative, जो भी company था, neither company nor we can say that Nawab cared for the public welfare and administration and good administration and public welfare. Clear? उन्होंने कुछ भी काम नहीं इसके लिए किया. किसने? Both company as well as जो नवाब and company था, they never cared for the people, for the welfare of the people, for the welfare of people. So finally क्या हुआ? Finally in 1772, in 1772, Warren Hastings, याद रखना, Warren Hastings, first governor general of Bengal, first governor general of Bengal का जो पहला गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स, in 1770 he abolished, इसने abolish किया. क्या किया abolish? Dual government in Bengal. ठीक है ना? ड्यूअल गवर्नमेंट किसने फिर abolish किया इस सिस्टम को? वॉरेन हेस्टिंग्स ने. कब? 1772 में. ठीक है ना? सो ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वी कैन से दैट अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैविंग रूल ऑफ नवाब एज वेल एज कंपनी. इसको कहते हैं ड्यूअल, द रूल ऑफ टू. ठीक है ना? इंट्रोड्यूस किसने किया बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने. ठीक है ना? रॉबर्ट क्लाइव ने. वी सी दैट अंडर दिस सिस्टम ब्रिटिश को क्या मिला? डिवाइन राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड आल्सो निजामत मींस जुडिशियल एंड पुलिस फंक्शंस. ठीक है ना? जो नवाब था, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी नवाब की? रूल ऑफ नवाब ही था, बट उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एंड ही वाज डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश पे वो डिपेंड था, बोथ फोर्सेस एज वेल एज फंडर्स. सो फाइनली इसको एबॉलिश किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने. वॉरेन हेस्टिंग कौन था? ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल. उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी से पसंद आया होगा. सो वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए.